Hello, good morning everyone. Today I'm going to teach you chapter banking, commercial and central banking. So let's start with the commercial bank first. So what is a commercial bank? Basically, I think you all are aware about central bank and commercial bank. So if I'm talking about commercial bank, so what are commercial banks? Except RBI or apart from RBI or central bank, all other banks are commercial bank. Whether it's Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce, and Axis Bank, HDFC Bank, Deutsche Bank, all these are commercial bank. Why they are known as commercial bank? Because their main aim is to earn profit behind every transaction, right? Whatever they are doing, their main intention is to earn profit, right? So what is commercial bank? It is an institution which performs the function of क्या क्या करता है commercial bank? Accepting deposits, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. क्या क्या करता है कमर्शियल बैंक? सबसे पहले हम मनी उसमें डिपॉजिट करते हैं तो हमारा पैसा एक्सेप्ट करता है वो. इफ़ वी नीड मनी तो हमें पैसा भी देता है वो. और मेकिंग इन्वेस्टमेंट, कई बार हमने देखा ना कोई ना कोई स्कीम में हम एफडी कर देते हैं बैंक में, या कोई कुछ भी स्कीम एनएससी वगैरह कुछ भी हम कर देते हैं तो वो सब हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पज हो गया, राइट? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ commercial bank. So what is commercial bank? It refers to an institution which performs the functions of क्या क्या function होते हैं उनके? Accepting deposits, okay, and granting loans and making investment. Why? With the aim of earning profit. Okay. So next is functions of commercial bank. Basically there are two functions of commercial bank, primary and secondary, but in our syllabus there are only primary functions. So let's continue with the primary functions. If I'm talking about primary functions, it has two primary functions, accepting deposits and granting loans. So let's continue that how, or let's understand how the bank is able to accept deposit and how they are granting the loans. Number one is accepting deposits. Just a minute. Yes. Number one is accepting deposit. If I'm talking about accepting deposits, so there are three ways in which commercial bank accept deposit. One is current account डिपॉजिट, जिसको हम और क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट. अनदर वन इज फिक्स डिपॉजिट और एफडी, जिसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट. एंड अनदर वन इज सेविंग डिपॉजिट. सो लेट्स कंटिन्यू विद द करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स. ओके, yes students, so current account deposit or demand deposit. So just listen very carefully. Current account deposit or demand deposit, this is the deposit which is, or this is the account which is maintained by, first of all, businessman only. Okay, this is the account which is opened by businessman only. And there are few features of current account. What are the features of current account? Number one, that these are checkable deposits. कौन से डिपॉजिट्स हैं? चेकेबल डिपॉजिट्स. ओके, चेकेबल डिपॉजिट्स मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो चेक के थ्रू होगी, राइट? उसके अलावा नेक्स्ट इज ओपन बाय बिजनेसमैन ओनली. हम लोग नहीं ओपन कर सकते करंट अकाउंट. कौन ओपन करेगा इसको? बिजनेसमैन. उसके अलावा there are no restrictions on number of transactions. means businessman कितनी मर्जी बार विड्रॉ और कितनी मर्जी बार डिपॉजिट कर सकता है. due to this feature only, here bank, instead of giving interest to the customer, they are charging service charge from the customer. यहाँ पर जो कॉमर्शियल बैंक है, जैसे हम नॉर्मली हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है. बट इस वाले अकाउंट में, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट मिलता नहीं है. कस्टमर को इंटरेस्ट और सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है बैंक को. क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि बैंक का, नॉर्मली हम बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं तो बैंक क्या करता है, उस मनी को फर्दर लोन में यूज करता है. लेकिन इस केस में क्योंकि वो कभी भी पैसा विड्रॉ करेगा, कभी भी पैसा डिपॉजिट करेगा, तो इससे बेसिकली बैंक का काम बढ़ा, कॉमर्शियल बैंक का ही तो काम बढ़ा. दे नीड टू मेक ऑल द एंट्रीज टाइम एंड अगेन. सो दिस इज द रीजन कि यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक डिड नॉट पे एनीथिंग, बल्कि वो चार्ज करता है सर्विस चार्ज. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. करंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, नाम से ही पता चल रहा है डिमांड डिपॉजिट मतलब जब मर्जी वो डिमांड करेगा उसको अपना पैसा मिल जाएगा. सो फर्स्ट फीचर इज ओपन बाय बिजनेसमैन. सेकंड, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. थर्ड, इंस्टेड ऑफ पेइंग, और दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स. एंड फोर्थ, इंस्टेड ऑफ गिविंग इंटरेस्ट टू द कस्टमर, बैंक इज चार्जिंग सर्विस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट. ओके, नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट. एफडीज आप सबको पता ही है. इसको टाइम डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एफडीज आर क्रिएटेड बेसिकली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 1 ईयर, 6 मंथ, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर हम एफडीज करते हैं ना. ओके, इसको टाइम डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. ये हमारे चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं है. दे आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट. वाई इज इट सो? सपोज करिए आपने 5 लाख की एफडी करी है.
अब आप ये तो है नहीं कुछ दिनों बाद जाके चेक लेके बैंक में पहुंच जाएंगे कि हमने 5 लाख की एफडी करी तो उसमें से 50,000 हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, एक चीज़ है कि आपको एफडी ब्रेक करनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका इंटरेस्ट भी लोअर डाउन हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर हम बात करें एफडीज की, दे आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होती है मैच्योरिटी का। लेकिन इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, इट कैरीज हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें होता है, हमारे एफडीज में, ठीक है, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में। अब आगे आते हैं बेटा हम सेविंग डिपॉजिट पे। सेविंग डिपॉजिट वो अकाउंट है जो हम लोग ओपन करते हैं, नॉर्मल कस्टमर, हम भी तो अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसे बोलते हैं सेविंग डिपॉजिट। अब सेविंग डिपॉजिट भी सिंपल है, वो चेकेबल है, जैसे फर्स्ट वाला चेकेबल था, ये भी चेकेबल है, मीन्स चेक की तो ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अब तो ऑनलाइन भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, डिपॉजिट पे देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट्स, आप कितनी मर्जी बार डिपॉजिट करो, बट देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल। वरना देखो जो सेविंग है इसका पर्पस क्या, सेव करना, तो अगर हम यहाँ पर विड्रॉल पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो क्या होता, क्या सेविंग का पर्पस डिफीट नहीं हो जाता, जिस पर्पस के लिए हम ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिपॉजिट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट विड्रॉल में रेस्ट्रिक्शंस हैं, तभी तो मनी सेव होगा। ओके, उसके बाद में क्या, चेकेबल डिपॉजिट्स हो गया, और रेस्ट्रिक्शंस किस पर हैं, विड्रॉल्स पे, ना कि डिपॉजिट पे। डिपॉजिट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, डेफिनेटली अभी करंट अकाउंट में पढ़ा था, यहाँ तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, उल्टा पे करना पड़ता है। फिक्स डिपॉजिट में हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट उससे कम है सेविंग में। सेविंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है मोर देन करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट में तो मिलता ही नहीं है, बट लेसर देन फिक्स डिपॉजिट। तो आई होप ऑल द 3 अकाउंट्स आर क्लियर टू यू। Accept how bank is accepting deposit from the public in they are accepting deposits in 3 ways. Number 1, current account or deposit, or fixed deposit, or demand deposits. Number 2, fixed deposits or time deposits, and number 3, saving deposits. I hope these 3 headings are clear to you all. ओके, अब हम आगे आते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अब लोन भी तो देते हैं वो, अब लोन किस किस फॉर्म में देते हैं, लेट्स बिगिन विद दैट। नंबर 1 इज कैश क्रेडिट। अगर आप कैश क्रेडिट के बारे में बात करें तो कैश क्रेडिट का मतलब सिंपल, पहले ये समझ लो कि जो भी आपको लोन मिल रहा है वो किसके अगेंस्ट मिल रहा है, करंट असेट्स के अगेंस्ट, लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, गोल्ड, कैश, उन करंट जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, करंट असेट्स की फॉर्म में, के अगेंस्ट में आपको लोन मिलता है। आप पेपर टाइटल्स मतलब है, जैसे आपके पास शेयर्स हैं, उसके पेपर टाइटल्स आपने डिपॉजिट कर दिए बैंक में, उसके बदले आपको लोन मिल जाएगा, करंट एसेट्स के बदले आपको लोन मिल रहा है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि सपोज करिए बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है 2 लाख रुपए, मान लो आपके शेयर्स की वर्थ को बैंक को लगी 2 लाख रुपए, आपको 2 लाख रुपीज आपके अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट कर दिए। अब बैंक क्या करेगा, जितना पैसा आपने यूज किया है सिर्फ उतने ही पैसे पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। सपोज आपके बैंक में गए, आपके 2 लाख रुपीज आपके अकाउंट में चले गए, लेकिन आपने यूज करे सिर्फ 1.5 लाख, यानी कि 50,000 बच गए हैं, तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 1.5 लाख पे चार्ज होगा, ना कि 2 लाख पे। जो 50,000 है मतलब बाद में वो पैसा वापस बैंक अपने पास ले लेगा। आई बात समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका यही है, एक तो करंट एसेट्स के बदले लोन मिल रहा है, दूसरी चीज पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा जितना यूज हुआ है। ओके, जबकि पूरे उसके अकाउंट में पहुंच चुके हैं पैसा, लेकिन बैंक को क्या दिख रहा है कि उसने इतना पैसा यूज ही नहीं किया, उसने जितना पैसा यूज करा उतने पैसे पे उसके इंटरेस्ट लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डिमांड लोन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड लोन, नाम से पता चला डिमांड, जब मर्जी बैंक डिमांड करेगा। जैसे भी हमने यहाँ डिमांड डिपॉजिट पढ़ा था कि ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, डिमांड लोन। ये ऐसा लोन है बेटा जो नॉर्मली हम लोग नहीं लेते हैं, ये वो लोग लेते हैं जिनको, बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिनको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है बिजनेसमैन को पता है कि उसका 15 डेज 1 मंथ में पैसा आ जाएगा या 2 मंथ्स में पैसा आ जाएगा उसके पास, उसको शॉर्ट टर्म बहुत कम टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म मतलब ऐसा लोन ना लेके वो क्या करता है, डिमांड लोन लेता है। उसमें क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, सब कुछ एग्रीमेंट होता है। बैंक कहता है कि इतने टाइम के बाद मैं आपसे कभी भी लोन रीपे करने के लिए बोल सकता हूँ। इसमें कस्टमर अग्री कर जाता है क्योंकि उसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, होल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। मानो अगर बैंक ने लोन दिया है 5 लाख का, तो पूरे के पूरे 5 लाख पे लोन लगेगा, ऐसा नहीं, इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि 5 लाख में से 4.5 यूज हुए हैं या 4.7 यूज हुए हैं तो बाकी पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कैश क्रेडिट में होता है जिसमें यूज्ड अमाउंट पे लोन लगता है, अनयूज्ड अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। बट अदर जितने भी आप बाकी लोन पढ़ोगे पूरे के पूरे अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है,
शॉर्ट टर्म लोन, नाम के लिए शॉर्ट टर्म लोन है, ये वो लोन है जो हम लोग लेते हैं, लाइक मैरिज लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, लंबे लंबे पीरियड्स के होते हैं 15-20 ईयर्स। बस इसमें ये शॉर्ट टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, हर चीज पहले से डिटरमाइंड है। टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो आप पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में, टर्म्स ऑफ क्रेडिट वगैरह हर चीज प्री डिटरमाइंड है, ठीक है। इसमें भी पूरे के पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। आगे बात समझ में। ये पर्सनल लोन है जो कि कोलेटरल के, कोलेटरल पता है ना, सिक्योरिटी ऑफर्ड अगेंस्ट लोन। लोन आपको फ्री में नहीं मिलेगा, लोन के बदले आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वो जो कोलेटरल होती है उसके बदले आपको लोन मिलेगा और इंटरेस्ट लगेगा पूरे के पूरे अमाउंट पर। तो एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। एडवांसिंग लोन, 3 तरीके से लोन मिलता है। नंबर 1 इज कैश क्रेडिट, जिसमें मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स के बदले लोन मिलता है और यूज्ड अमाउंट पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर मैंने आपको डिमांड लोन बताया, बैंक कभी भी डिमांड कर सकता है, ये लोन हर कोई नहीं लेता है, वो लोग लेते हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कम टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए होता है और पूरे के पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। और शॉर्ट टर्म में भी वही पर्सनल लोन टाइप कोलेटरल के अगेंस्ट, और उसमें भी पूरे के पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। सो आज बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, 2 फंक्शंस और प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। I hope this is clear to you. If you have any doubt, please comment. Thank you everyone.